Good morning, all of you. This is Dr. Aisha Butalia. I welcome you all for this short session, okay, where we are going to talk about. I just want to make you aware that in today's world, since this is related to the subject software engineering and project management, and I'm communicating with computer engineering on and IT students. So, as you know, in the current trends, there are a lot of uh, engineering colleges. Every engineering college has computer and IT students. Lakhs of students are opting for this course, and everybody is learning C, C++, Java, programming languages, web design, software engineering, database, and a lot of subjects you have in your syllabus. Not even you, but even BCom students are learning C, C++, DBMS. Even nowadays, the school students are learning programming languages. Even they have Python. In fact, they have AI also in this course. So don't you think that you have a lot of challenges to face in today's scenario if you want to stand out, get a good job, and to become an entrepreneur? So just this session is to highlight that you are just studying subjects, you're just studying the theoretical part, but are you aware of the challenges? Have you have any plan in the mind how you are going to overcome these challenges? Because you are in a different scenario. Obviously जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, we did not have internet, so we had books only. जब इंटरनेट आया, when I was doing my early graduation, internet came, we had to go in the internet cafe. 1 घंटा रुकना पड़ता था एक हॉटमेल का सिर्फ लॉगिन पासवर्ड का वेब पेज ओपन होने के लिए. So these were the challenges we were facing. But obviously there were a lot of jobs at that time, and we were not getting that much of exposure. But in today's world, the jobs are less, exposure is more. You've got a lot of knowledge where you can go through on the net. जो टॉपिक्स मैं आपको यूट्यूब पे देती हूँ, देर आर अदर फैकल्टीज ऑल्सो अप्रोचिंग ऑन द सेम टॉपिक्स. So it's not a very big deal to understand the theoretical topic. So that's why today I've got a little bit of different session. This is a short session, but आज का टॉपिक थोड़ा हट के है कि what are the challenges of yours in the current scenario. तो मैं चाहती हूँ कि आप ये प्लीज होमवर्क कीजिए और चैट बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन पे आप लिखिए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और उस चैलेंजेस के लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज आप प्लान की है, और अगर तक अभी तक नहीं की है तो प्लीज मेरा ये सेशन के बाद आप प्लीज वो स्ट्रेटजीज को प्लान करना शुरू कर दीजिए. एंड लेट्स हैव एन इंटरैक्टिव सेशन नेक्स्ट टाइम. आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके वो चैलेंजेस और आपने क्या स्ट्रेटजीज आपके दिमाग में आता है आप प्लीज वो शेयर कीजिए, सो दैट यू नो आई कैन टेक दोस टॉपिक्स एंड टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम. Apart from this, I would like to introduce the RAW model. RAW is R stands for responsibility. A stands for accountability. आप इनके डिक्शनरी मीनिंग्स देख सकते हैं. अकाउंटेबिलिटी मीन्स यू टेक द यू से दैट यस आई इट इज. अगर आपका बैंक में अकाउंट है ना, तो बैंक में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे आपको अपना पासवर्ड ही वो इट्स यू शुड बी अकाउंटेबल टू कीप योर पासवर्ड सेफ, राइट. आप किसी और को उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते. अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी हुई है तो इसका मतलब आप ही ने कोई ना कोई उसको सिक्योर रखने के लिए टेक केयर नहीं किया. So just you need to highlight that this is something like accountability. तो अगर आप कोई आपने अगर एडमिशन ली है कोई कोर्स के लिए, so you are accountable to get clear through that course. You are also responsible for even if you fail or you have a success, you are responsible. Even if you score good marks, you are successful. You are responsible. अगर आप फेल होते हो तो भी आप responsible हो. ठीक है. ओनरशिप. आप ओनरशिप लो कि यस आई विल डू इट. कई बार टीचर्स आप किस टीचर्स पे डिपेंडेंट रहते हो कि टीचर आपका सिलेबस कंप्लीट करेगी. फॉर एग्जांपल अगर टीचर बीमार हो जाती है या टीचर ने जॉब चेंज कर लिया,
आप ये बोल सकते हो कि टीचर ने जॉब चेंज कर लिया इसलिए मैं कोर्स में फेल हो गया. I think in today's world, this answer is like somebody is talking like a loser. Why? Because अभी मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस का हर टॉपिक का किसी ना किसी, इवन आईआईटी में आईआईटी के लेक्चरर्स ने, प्रोफेसर्स ने अपने यूट्यूब वीडियो शेयर किए हुए हैं ऑन दोज टॉपिक्स. तो आपको मिल जाएगा. आपके पास नॉलेज काफी है, गूगल पे आपको काफी साइट्स मिल जाएंगे जहां से आप उन टॉपिक्स को स्टडी कर पाओगे. So, understanding a theory topic is not at all challenging. So, I think आप सब्जेक्ट को आराम से क्लियर कर सकते हो. It's absolutely not a big deal. आईआईटी में आपको ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिनका सोल्यूशन नेट पे है ही नहीं. बहुत सारे कॉलेजेस में ये फॉलो नहीं होता है. आपको जनरली ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो ऑलरेडी उसका सोल्यूशन है, जिनको हम असाइनमेंट्स कहते हैं. बट आई वुड बिलीव दैट अगर आपको टीचर ऐसा असाइनमेंट्स दे रही है, आप जाके टीचर से पूछो कि मैम हमें कोई चैलेंजिंग टॉपिक्स दो. और अगर आपको कोई चैलेंजिंग टॉपिक सामने वाला नहीं देता है तो आप खुद एक मिनी प्रोजेक्ट ले लो. अपने डे टू डे लाइफ से लेके कोई टॉपिक ले लीजिए. आई वुड रिकमेंड आप अपने हॉबी को अपना एक मिनी प्रोजेक्ट ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर गार्डनिंग पसंद है तो आप गार्डनिंग के ऊपर एक स्मॉल सॉफ्टवेयर बना सकते हो कि गार्डनिंग के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कौन से क्लाइमेट में कौन सा प्लांट होना चाहिए. यू कैन मेक एन ऐप ऑन दैट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन ऑन गार्डनिंग. जो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट तो होता है लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होते. अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड से हो तो आप एग्रीकल्चर पे एक प्रोजेक्ट कर सकते हो. अगर आप खुद बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो, एक लेडी हो, हाउसवाइफ एक्चुअली बनना चाहती हो, सिर्फ पेरेंट्स ने बोला इसलिए कोर्स कर रही हो, तो आप एक कुकिंग का ऐप बनाओ. ठीक है, यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस विद मी. इनफैक्ट एक कुकिंग का ऐप भी कितना चैलेंजिंग हो सकता है, उस पर एक पेटेंट भी फाइल हो सकता है. इफ यू थिंक बियॉन्ड स्कोप, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसपे आप अपने हॉबीज पे भी पेटेंट फाइल कर सकते हो. मैंने क्यों कहा कि अपने हॉबी को मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि आपको ऑलरेडी अपने हॉबी के बारे में नॉलेज होगा. क्योंकि अगर वो हॉबी है आपकी तो आपने थोड़ा टाइम तो उस पर स्पेंड किया होगा. तो आप उस नॉलेज को शेयर करो. और कंप्यूटर तो ऐसी चीज है कि यू कैन क्रिएट मिनी प्रोजेक्ट ऑन एनी लेमन टॉपिक. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आपको रोबोटिक्स पे ही काम करना है, सीएनसी पे ही काम करना है. सॉफ्टवेयर तो ऐसी चीज है कि आप किसी पे भी बना सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहता है. सो आप एक मिनी प्रोजेक्ट ले लो और आप उस पे, जो कि हमारा टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिजाइन है, आप उस पे एनालिसिस करो, डिजाइन करो, है ना. और जब आप एनालिसिस एंड डिजाइन करोगे, एज आई सेड अर्लियर कि दिस इज एक्चुअली अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स टास्क. लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजर का लाइव किसी मिनी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. एंड व्हेन यू विल फेस एन इंटरव्यू, आई वुड से कि आप उन टॉपिक्स के ऊपर बात करोगे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स बात करते हैं. सो आई थिंक आप क्राउड से हट जाओगे. तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक है ये आपको क्राउड से डिफरेंट दिखाएगा. तो ये चैलेंज जो है वो आप इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को एक मिनी प्रोजेक्ट करके अचीव कीजिए, ताकि आप इंटरव्यू में यू वुड बी एबल टू टॉक अबाउट मेट्रिक्स, you will be able to talk about analysis, you will be able to talk about the design. टेल द इंटरव्यूअर कि आप मुझे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दो, मैं आपको डिजाइन करके देता हूँ. तो ये आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप सिर्फ एक कोडर बन के नहीं रह जाओगे. आईआईटी में एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते ही नहीं है, बिकॉज दैट इवन अ बीकॉम स्टूडेंट नाउअडेज कैन डू इट. ओके, सो डिजाइन इज समथिंग विच कैन आपको क्राउड से हट के दिखाएगा. सो दैट इज वाई इस सब्जेक्ट को, जो बहुत इजी सब्जेक्ट है लेकिन ये आपका बहुत ही प्लस पॉइंट बन सकता है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये टॉपिक्स जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, इसको लाइव एक मिनी प्रोजेक्ट पे लेके जाइए. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. एसआरएस बनाइए, मैंने ऑलरेडी उस पर सेशन लिए हुए हैं. आप एसआरएस बनाइए 3-4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे और देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या बढ़ जाता है. ओके, लेकिन आप कहेंगे कि आप हमेशा टीचर डिपेंडेंट हो, टॉपिक डिपेंडेंट हो, आपको थियोरी चाहिए, तो फिर आप इस मॉडल पे आप एक्चुअली अप्लाई करते हो. बी स्टैंड्स फॉर ब्लेम, बी स्टैंड्स फॉर ब्लेम.
सो यू विल बी ब्लेमिंग कि अरे टीचर ने तो टॉपिक पढ़ाया ही नहीं, जबकि ऑलरेडी हर टॉपिक यूट्यूब पे अवेलेबल है। टीचर ने हमें टॉपिक्स दिए ही नहीं कुछ चैलेंजिंग, जब देते हैं तो आप करते नहीं हो, और जब नहीं देते हैं तो आप ब्लेम गेम में जाते हो। तो ये ब्लेम गेम नहीं चाहिए। यू शुड बी अकाउंटेबल टू कि आपको हट के दिखना है। अगर आप चाहोगे कि आपको हट के दिखना है, आप टीचर से जाके खुद मिलो, टीचर को बोलो कि आई वॉन्ट टू डू इट, तो देन टीचर विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू गिव हर एंड हिज नॉलेज टू यू। ओके, सो यू शुड बी प्रोएक्टिव। क्या होता है कि कई बार टीचर्स काफी प्रोएक्टिव होते हैं, लेकिन उनको कुछ टाइम तक स्टूडेंट से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इवन टीचर्स स्टार्ट बिकमिंग इनएक्टिव। ओके, सो यू शुड बी मोर प्रोएक्टिव इन द लेक्चर्स। आप कुछ आइडियाज लेके जाओ, बिकॉज यू आर यंग क्राउड, आप में वो एंथुजियाज्म होना चाहिए, क्योंकि जॉब टीचर को नहीं आपको चाहिए, तो वो चैलेंजेस भी आपको फेस करने हैं। सो यू शुड बी प्रोएक्टिव, यू शुड share your ideas, discuss it. And I think if you discuss with me, I can help you out in writing patents, I will help you out in writing books, I can help you out writing good research papers. ये भी एक बहुत अच्छा आप हट के अपने इंटरव्यू में शो कर सकते हो कि सी आई हैव written books, I have written research papers, I have written patent before my getting a job. कौन आपको हायर नहीं करना चाहेगा जिसके नाम पे पेटेंट्स है। सो ये चैलेंजेस है आज के वर्ल्ड में, लेकिन आप उनको फेस भी कर सकते हो, एंड यू गेट अ मेंटर आउट ऑफ इट। If you do not get any mentor, I'm always there to help you out on these topics, because I myself have written 50 plus publications, 2 books and 7 patents, so I can help you out on that। Okay, but if you have excuse कि नहीं, मुझे मुझे तो टीचर ने आज टाइम ही नहीं दिया, टीचर ने आज टाइम नहीं दिया तो कल टाइम ले लो, बिकॉज इवन टीचर्स आर बिजी। लेकिन नहीं, आज टीचर को कांटेक्ट किया, आज टीचर ने टाइम नहीं दिया, हमने वो बात को खत्म कर दी। तो एक्सक्यूज, आपको एक्सक्यूज मोड में नहीं जाना है। इट इज योर ड्यूटी कि आपको सामने वाले से वो आउटकम लेना है। ओके, एंड डी इज फॉर डिनायल। आप कोई भी चीज, मैं जब भी आपको लेक्चर में भी कुछ पूछती हूँ, तो कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोग डम रहते हैं, तो यू आर डिनाइंग। एक्चुअली आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, इट इज वन वे ऑफ डिनाइंग ओनली। तो आपको डिनायल मोड में नहीं जाना है। हमेशा जब भी मैं बोलूं क्या ये कोई करेगा, आपको नो नहीं बोलना है, हमेशा अफर्म यस यस। उससे क्या होगा कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बढ़ेगी, वो भी आपका इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हो, एमएस के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आपको ग्रुप डिस्कशंस उस पे आपको कुछ मार्क्स होते हैं, और ग्रुप डिस्कशन में जो इवेल्युएटर होता है वो यही चेक करता है कि हाउ मच यू आर प्रोएक्टिव, व्हाट आर योर लीडरशिप क्वालिटीज, कैन यू मैनेज द टीम एंड ऑल दैट। तो कभी भी टीम में काम करने के लिए हमेशा यू शुड टेक द लीडरशिप। आप बोलोगे कि अरे मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है टीम में, तो आपको जाके लोगों को अप्रोच करना है। और अगर आप ये बोलोगे कि दूसरा टीम मेंबर तो काम ही नहीं कर रहा है, तो आप ब्लेम, एक्सक्यूज और डिनाइल में जाओगे। वो काम नहीं कर रहा है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। आप यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, क्योंकि आप भी उस टीम के मेंबर हो। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो उसको नॉलेज कम मिलेगा। ओके, सो I think everybody in this group who is attending the lecture wants to be in the raw model and not to be in the bed model. Okay, तो पहले तो मैंने आपको ये, आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस लाए, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को, इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुनोगे, तो मैंने इसके आपको एक्चुअली, मैंने ही आपको स्ट्रेटेजीज और कुछ आइडियाज दिए हैं कि इसको आपको कैसे ओवरकम करना है, कैसे क्राउड में अपने आप को हट के दिखाना है, सो दैट यू डोंट गेट स्मॉल 3.5 lakh package, you go beyond that. Okay, you have to achieve, there is no sky actually for the people who dream. So first of all, start dreaming and dream big. Okay, that should be your thing. If you dream big, automatically आप एक लेवल तक तो पहुंच ही जाओगे। बट उसके लिए आपको ड्रीम बिग करने के बाद सिर्फ आपको एक ही चीज है कि आपको ये मॉडल को अप्रोच करना है, ये मॉडल को अप्रोच नहीं करना है। ओके, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, बट ट्राई टू फोकस ऑन द कंटेंट्स रादर देन द अदर disturbing elements. So I think I'll stop here. It was a short session, but very useful and very effective, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमें एक्चुअली लर्न क्या करना है। सो यू शुड लर्न मोर ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अगर आप
प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो थ्योरी आपको अपने आप ही वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मगअप नहीं करना पड़ेगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस एक्चुअली। तो आप प्लीज सबसे पहले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच पे बिलीव कीजिए, एक अच्छा सा हॉबी रिलेटेड मिनी प्रोजेक्ट बनाइए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एक्चुअली अगर हमने जैसे डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका यू हैव डिफरेंट फेजेस लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग, first phase, then you have analysis, then you have design, you have implementation oblique coding, then you have testing, and you have maintenance. Okay, so in your software engineering, these three things are important. Okay, implementation is not a part of, it is a part, obviously these all are a part of software engineering, but अगर आप मिनी प्रोजेक्ट करते हो और आप पूरा उसको कोडिंग भी नहीं करते हो, सॉफ्टवेयर पूरा बनाते भी नहीं हो, तो उसके पहले के जो ये फेजेस है अगर यही आप अच्छे से कर लो, so you will stand apart from the crowd because you will know how to, in last lecture अगर आप मेरे previous recordings देखेंगे, requirement gathering and analysis and design, these three together is nothing but your SRS, software requirement specification. तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप 3 से 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे SRS बना लोगे, so you will be perfect in these 3 things and you will stand out of it because you will be in an interview you will be competing the project manager actually. Okay, so in analysis you will be trying to find out literature survey. Okay, in design you will be designing UML diagrams, so you will be well conversed to draw the diagrams and that will be very easy for you to go in the competitive mode. तो अगर आपने कोडिंग नहीं भी किया तो आप टेस्टिंग भी कर सकते हो ऑन सिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब फ्रेमवर्क पे टेस्टिंग करना बोलते हैं उसको। Okay, of course we will see this in detail in our upcoming lectures, बट सिमुलेशन टेस्टिंग कर सकते हो। सिमुलेशन टेस्टिंग में आप बिना कोडिंग किए बिना सॉफ्टवेयर बनाए भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। आपको फ्रेमवर्क पे टेस्ट करना है, जो फ्रेमवर्क आप डिजाइन में बनाओगे उस फ्रेमवर्क्स पे आपको टेस्ट करना है, कौन सा प्रोसेस मॉडल डिसाइड करना है। अगर ये भी आप इतने कॉम्पिटिटिवली आप अगर डील कर सकते हो, जो हमारा पहला असाइनमेंट है कि कौन से सारे प्रोसेस मॉडल्स है, कौन सा बेटर है, कौन से उसके एप्लीकेशंस है। अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूं तो क्या आप बता पाओगे कि कौन से प्रोसेस मॉडल को आपको इसको अप्लाई करना है। वी हैव ऑलरेडी टेकन लेक्चर्स ऑन प्रोसेस मॉडल्स, वाटरफॉल, लीनियर, रैड, इंक्रीमेंटल, ओके, स्पाइरल, प्रोटोटाइप। तो अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती हूँ और अगर आप मुझे ये बता पाओ कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस मॉडल डिफाइन होगा, आई थिंक यू कैन रियली impress with your project management skills, trust me. बट आप क्या करते हो, आप सिंटैक्स, कोडिंग, वही सब चीजों में, हाउ टू राइट अ फंक्शन, obviously these things are primarily actually nobody in the interview is going to ask you how to write a function. They will ask you what is the importance of writing a function, because every company gives you a training, क्योंकि उनको आपको सी में ही काम कराना है ऐसा जरूरी नहीं है, उनके अपने कुछ फ्रेमवर्क होते हैं तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं उस फ्रेमवर्क के लिए, और उस फ्रेमवर्क में काम करते करते आप जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आप साइमल्टेनियसली वो सर्टिफिकेशन कर सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली अ नो बिग डील। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी वांट्स, ठीक है, वो आपसे सिंटैक्स पूछने वाली नहीं है। तो you also need to, of course I'm not saying कि आप programming language मत सीखो, it's a part of your curriculum, you have to pass this course and as a computer and an IT professional आपको वो आना ही चाहिए, but I just want to highlight कि that is 20% is what the company is asking for. In fact that is what the school students also in 5 years are going to learn and they are learning also. So you have to take these topics as your ownership. Actually I should say you should have this ownership of taking these topics as your skill set. Okay, so thank you very much for your patience listening.
If you have any doubt, please ask. Participants, any doubt? Really got a new ideas and a motivation, ma'am. Yes, consider कैसे this. implement करे, कैसे, ये नहीं पता था बस. हाँ, exactly. Consider this as a motivational topic. इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम interactive session रखें आपके projects पे, and we will learn more rather than I only explaining you the topic. Okay, I can explain you the brief of the topic. You can obviously go on the website. I'll share you on the description box also. उस टॉपिक्स पे आप उन लिंक्स पे जाके डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो, बिकॉज एज एन IIT स्टूडेंट वो रात भर असाइनमेंट्स करते रहते हैं, उनको प्रोफेसर एक टॉपिक दे देते हैं और वो रात भर वो टॉपिक को स्टडी करते हैं. सो अ स्टूडेंट शुड नॉट एक्सपेक्ट कि आपको पूरे स्पून फीडिंग की तरह आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा. आपको टॉपिक का ब्रीफ, जैसे कल मैंने वाटरफॉल मॉडल आपको सिखाया था, अगर मैं वाटरफॉल मॉडल का 10 मिनट्स आपको ब्रीफ करूं, आप वो खुद जाके वेबसाइट पे स्टडी करो. ऑब्वियसली अगर आप उसको खुद स्टडी करोगे तो जो आपको मैम ने लेक्चर दिया है, मैंने आपको जो लेक्चर दिया, वो आप 1 घंटे का लेक्चर 3 बार सुनोगे तो आपको समझ में आएगा. लेकिन जब आप खुद उस चीज को पूरे वेबसाइट से स्टडी करोगे, हो सकता है कि आपको 6 घंटे लगे, पर उस 6 घंटे में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा वो आपके वो 3 घंटा सुनने से भी नहीं बढ़ेगा. सो यू शुड do all the topics on your own when your professor just gives you the brief, and you should start applying it immediately on your project. आज एक टॉपिक आपने पढ़ा, मैम ने एक टॉपिक लिया, इमीडिएटली आपको उस मिनी प्रोजेक्ट पर उसको नेक्स्ट डे को अप्लाई करना है. ऐसा नहीं है कि सारे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आखिरी में आप उसको प्रोजेक्ट पे अप्लाई करो, फिर वो मजा नहीं है, फिर आप एक्चुअली लर्न नहीं कर रहे हो. ठीक है, आप लर्न नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उसको जबरदस्ती का अप्लाई कर रहे हो. यू नीड टू गो विद द प्रोसेस. हो सकता है कि आप उस प्रोजेक्ट में आपको लगे कि नहीं, मैं तो इन सारे जो 7 मॉडल्स मैम ने बताए हैं या जो नेट पे है, मैं एक अलग मॉडल डिजाइन करना चाहता हूँ. आपको एक अलग मॉडल क्लिक होगा, लेकिन जब कब क्लिक होगा, जब हम ऑलरेडी उस टॉपिक में घुसे हुए हैं. अगर 1 महीने के बाद आप उस प्रोसेस मॉडल को अप्लाई करोगे, ऑलरेडी आप उस टॉपिक से बाहर हट चुके हो. तो जब आप डे एंड नाइट इस टॉपिक को पढ़ रहे हो सकता है कि आपका माइंड आपको एक नया मॉडल तैयार करने के लिए मोटिवेट करे, और तब आप उस पर एक रिसर्च पेपर लिख सकते हो. And you will actually in the interview say that I have designed my own process model. Trust me, nobody can reject you at that level. ठीक है, क्योंकि उस कंपनी को भी एक ऐसा पर्सन चाहिए जो नया सोच सकता है, बियॉन्ड सोच सकता है, मेरे कंपनी को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है. इसको अगर मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया तो ये कुछ नया डेवलप कर सकता है, जिससे मेरा क्लाइंट वुड बी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. क्योंकि अगर 10 कंपनीज एक ही चीज प्रोडक्ट पे दे रही है और मेरी कंपनी कुछ नया दे रही है, तो ऑब्वियसली माय कंपनी विल हैव अ डिफरेंट लेवल इन मार्केट. और फिर कुछ टाइम बाद तो आपको एक्चुअली शायद कोई जॉब की जरूरत ही ना हो, क्योंकि आप खुद अपनी कंपनी खड़ी करोगे, एक एंटरप्रेन्योर बनोगे. क्योंकि जब इंसान खुद का कुछ नया बना सकता है तो वो किसी और के बताए हुए चीजों पे काम नहीं कर पाएगा मोनोटोनसली. तो ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन लेवल यू विल yourself become a business analyst, you yourself become a consultant, you yourself can become an entrepreneur. Any other questions? I'm very grateful that you liked this lecture. Anybody else would like to share? Okay, so we will stop here. Thank you for your patience listening. Okay, thank you very much. I'm getting the response. So it is really good to know that you like this lecture. Thank you very much. Have a nice day.